Okay. Okay, so let us start our new topic, which is called energy stored in a combination of capacitors. Energy stored in combination of capacitors. पहले हमने एक कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट किया कि एक कैपेसिटर जब किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट होगा, सो हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विद इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने निकाला। और वो कितना हमने निकाला? फॉर ए सिंगल कैपेसिटर, energy stored is in the form of potential energy, and that can be written as U is equal to half CV square. U is equal to half CV square, or it can also be written as half U is equal to half Q square by C. So these are the two formulas. In first formula, we can say that the energy stored, the potential energy, is directly proportional to C and directly proportional to V square. So in this formula, we can see, here U is directly proportional to V square, because C is the property of the material. And in the second formula, we can see that U is directly proportional to Q square, right? Now, energy stored in a combination of capacitors. So let me take the first case, which is called the series combination. So case 1, it is the series combination. Few capacitors, they are connected in series. So let me take the capacitors. So these are the capacitors. Let me take the three parallel plate capacitors, and they are connected in series. So this is the pattern in which I can connect the capacitors in series. So this is a series combination. And now they are connected with the external power supply, external voltage source, having the voltage V. So this is the capacitor having the capacity C1, C2, and C3, right? C1, C2, C3. And this is the positive terminal of the battery, and this is the negative terminal of the battery. So definitely this is my positive point. This point has positive potential, and this point at negative potential. So let me call this as P, point P at positive potential, and let me call this is point R at negative potential. Okay, because ये वायर से कनेक्टेड है, so ये पूरा का पूरा चार्ज, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लगाऊं, यहाँ पे कोई पॉइंट A लें और यहाँ पे कोई पॉइंट B लें, so अगर हमारे से कोई पूछे कि इस पॉइंट A पे कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? V पॉजिटिव। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? V नेगेटिव। सो इसका मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो गया A पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली V पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया V पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना हो गया V नेगेटिव। अगर कोई पूछे यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पॉइंट C और एक पॉइंट यहाँ पे D, तो यहाँ पे भी उतना ही होगा V पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना होगा? V नेगेटिव। जब वायर है तो वायर में हर पॉइंट पे, वायर में हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? पॉइंट P पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे कितना होगा? V पॉजिटिव ही होगा,
क्योंकि वायर लगाने से छोटी वायर हो बड़ी वायर हो पोटेंशियल में चेंज नहीं होता, पोटेंशियल उतना ही उतना रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना होगा, वी नेगेटिव होगा। सो कमाल की चीज होगी, ये पूरा पॉजिटिव पोटेंशियल जितना इस टर्मिनल पे था पॉजिटिव पे, वो सारा का सारा यहाँ पे है। जो यहाँ पे नेगेटिव पे था वो बिल्कुल यहाँ पे है, और आगे भी ये भी तो वायर है, ये भी तो वायर है। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल पूछे तो कहने की जरूरत नहीं है भैया यहाँ पे वी पॉजिटिव ही आएगा। अगर कोई इस पॉइंट पे पूछे तो यहाँ पे वी नेगेटिव ही आएगा, है ना। आगे मामला चेंज होगा, आगे मामला चेंज हो जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट, it is a series circuit and series circuit is a voltage divider circuit. Now this V volt that will be divided into three parts, V1 across C1, V2 across C2 and V3 across C3, because it's a series circuit. The capacitors, they are connected in series. So series circuit, it is a voltage divider circuit. This voltage V that will be divided into three parts because three capacitors are there. If four capacitors are there, then this V volt will be divided into four parts, right? So any circuit, whether it is a resistance circuit or whether it is a capacitor circuit, if it is a series circuit, it will behave like a voltage divider. So it is a voltage divider circuit. वोल्टेज को डिवाइड करेगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। सो वोल्टेज तो डिवाइड हो गई, वोल्टेज तो डिवाइड हो गई, V इज इक्वल टू, है ना। सो वोल्टेज कैसे होगी, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी V1 प्लस V2 प्लस V3। V3 इक्वेशन तो यही बननी चाहिए वोल्टेज के लिए, राइट, बिकॉज इट्स ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। सो इक्वेशन V1 plus V2 plus V3 इक्वेशन यही बनी, राइट। बट सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, व्हाट अबाउट द करंट। सो सपोज ए करंट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, I current start from the positive terminal and it enters to this positive plate of the capacitor C1, right? So the same current will enter C1 and same current will come out from the negative plate of C1, I current. Again the same current will reach to the positive plate of C2 and same current will come out, right? So you can see that the same current I is coming out from C1, coming out from C2, coming out from C3. There is no change in the current. So what I mean to say, if it is a series circuit, voltage is divided into three parts, V1, V2, V3, but there is no change in current. Current in all the capacitors is same. So I is constant, I is same, I constant है। सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज का डिवीजन होता है बट करंट का डिवीजन नहीं होता, करंट कांस्टेंट है। So this is my second equation. So इसका नाम रख दिया मैंने इक्वेशन A, इक्वेशन B। करंट यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हमें करंट से मतलब नहीं है बच्चों, हमें मतलब है चार्ज से। सो वी नो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो I जब कांस्टेंट है सो ये Q भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। Q भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर Q कांस्टेंट हो गया तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है, यहाँ पे अगर चार्ज Q है तो यहाँ पे भी चार्ज Q ही होगा, यहाँ पे भी चार्ज Q ही होगा, राइट। तो जितना चार्ज इसके ऊपर होगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा, उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा। Series circuit is a voltage divider circuit. Current remains constant because current is constant, so charge is also constant. So C1 पे भी उतना ही चार्ज होगा, C2 पे भी उतना ही चार्ज होगा, C3 पे भी उतना ही चार्ज होगा। चार्ज बिल्कुल बराबर रहेगा। कैपेसिटी भले ही तीनों की अलग अलग है, कैपेसिटी भले ही तीनों की अलग अलग है, पर तीनों के ऊपर चार्ज सेम है because it is a series circuit.
राइट। सो ये तो इसका बेसिक पार्ट है, बट हमारा जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो मैं अगर पहले कैपेसिटर में अगर देखूं कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इस पहले कैपेसिटर में देखते हैं। तो पहले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, U1। वो कितनी होगी, U1 इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1, राइट। सेकेंड कैपेसिटर में कितनी होगी, U2 इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C2। सेकेंड कैपेसिटर में कितनी होगी, ये फार्मूला तो पता ही है ना, एक सिंगल कैपेसिटर के लिए यही फार्मूला लगता है, एक सिंगल। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से अगर देखें तो बच्चों, यहां पे भी चार्ज Q है और यहां पे भी चार्ज Q है। कैपेसिटी भले ही अलग अलग है, इसकी C1 है और इसकी C2 है, बट चार्ज दोनों में सेम है, राइट। अब क्योंकि कैपेसिटी अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग हो गई। इसकी बन गई U1 बिकॉज कैपेसिटी इज C1, इसकी बन गई U2 बिकॉज कैपेसिटी इज C2। थर्ड कैपेसिटर को कैसे लिखेंगे, U3 इज इक्वल टू 1/2 Q, तो वैसा ही वैसा है, Q/C3 बच्चों, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी निकालना बहुत इजी है। सो टोटल कैपेसिटी U इज इक्वल, सॉरी टोटल एनर्जी U1 प्लस U2 प्लस U3, राइट। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाय C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाय C3, राइट। अब देखो कॉमन क्या चीज है, सम में ये चीज कॉमन है, ये चीज यहाँ पे भी 1/2 Q स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/2 Q स्क्वायर और यहाँ पे भी 1/2 Q स्क्वायर। तो जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। सो 1/2 Q स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बचा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। सो ये हमारे पास आ गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें कैपेसिटी पता है, C1 C2 C3 पता है, सो इजीली हम निकाल सकते हैं कि हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट। अब हम सेकंड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हम चूज करेंगे, कैपेसिटर चूज करेंगे, वो पैरेलल में होंगे और पैरेलल में चेक करेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, ओके। सो पैरेलल का तो सर्किट ही अलग होगा। इसमें कोई डाउट, क्लियर, बिल्कुल इजी टॉपिक है। एक सिंगल कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने मर्जी कैपेसिटर सीरीज में लगे हो निकाल सकते हैं, वो बहुत इजी है। पैरेलल का भी बहुत इजी है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन, और जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले एक डायग्राम देखते हैं। सो ये हमने कुछ कैपेसिटर्स को चूज किया, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, राइट। सो अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है हमें। सो कैसे करेंगे, मेरा सर्किट तो हमेशा ऐसा बनता है, राइट। मैं तो ऐसा सर्किट एक पैरेलल के लिए हमेशा ये रखता हूँ ये। सो और ये मैंने कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ,
एक्सटर्नल बैटरी मैंने लगा दी एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव मैंने बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, सो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3 और इसकी वोल्टेज है ये V, राइट। सो हमें एक चीज तो पता है, अपनी लोअर क्लासेस में हमने स्टडी किया है कि जब चीजें पैरेलल में हों तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो जितनी वोल्टेज ये यहाँ पे है, जितनी वोल्टेज यहाँ पे है V, उतनी ही यहाँ पे होगी V, उतनी ही यहाँ पे होगी V, उतनी ही यहाँ पे होगी, है ना। सो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो पिछले केस के अंदर V कांस्टेंट नहीं थी, वो V1 V2 V3 में डिवाइड हुई थी, बट यहाँ पे हर एक के पास कितनी है, V है, एक जैसी है। पैरेलल में वोल्टेज एक जैसी रहती है, बट बच्चों पैरेलल में वो कौन सी चीज है जो एक जैसी नहीं रहती, वो है करंट। तो मान लो यहां से करंट चला होगा I और वही करंट पहुंचा होगा यहाँ पे I, तो यहाँ पे आके तीन रास्ते हैं, इधर गया होगा I1, इधर गया होगा I2 और इधर गया होगा I3। तो C1 को मिला I1, C2 को मिला I2 और C3 को मिला I3, राइट। सो पैरेलल सर्किट इज ए करंट डिवाइडर सर्किट। जैसे सीरीज सर्किट इज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ऐसे ही पैरेलल सर्किट इज ए करंट डिवाइडर सर्किट। सो दिस सर्किट इज ए करंट डिवाइडर, ये करंट डिवाइडर सर्किट है, राइट। इट्स ए करंट डिवाइडर सर्किट। तो करंट यहाँ पे कैसे हुआ, टोटल करंट कैसे लिखेंगे बच्चों, I इज इक्वल टू, जैसे वहां पे वोल्टेज को लिखा था तो यहाँ पे करंट को लिखूंगा मैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे ही लिखूंगा I3 बिकॉज इट्स ए करंट डिवाइडर सर्किट। तो करंट को डिवाइड करेगा I1 I2 I3 में। अगर 4 कैपेसिटर होते तो I4 आ जाता, 2 होते तो I1 और I2 में डिवाइड कर देता। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर यूज किए, I1 प्लस I2 प्लस I3, बट V इज कांस्टेंट, राइट, V इज कांस्टेंट। सो अब हमें पता है कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी कितनी होती है, इसके अक्रॉस होगी एनर्जी U1, इसके अक्रॉस एनर्जी होगी U2 और इसके अक्रॉस एनर्जी होगी U3। तो निकाल लो, इसके अक्रॉस एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज तो V है। इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी, हाफ C2, वोल्टेज तो V है, V स्क्वायर वोल्टेज वही है। इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी, हाफ, कैपेसिटी कितनी है C3 और वोल्टेज कितनी है V स्क्वायर। तो बस मामला बहुत इजी। तो टोटल एनर्जी stored in a parallel combination, stored in a parallel combination कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, बिल्कुल इजी है। तो उसको ऐसे कर दें, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। सो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 की वैल्यू प्लेस करते हैं, हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C3 V स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू, देखो बच्चों कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन को ध्यान से देखो, 1/2 सब में है, V स्क्वायर सब में है, 1/2 यहाँ पे भी है, V स्क्वायर यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, V स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो कॉमन क्या निकाल लिया हमने, 1/2 V स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। सो ये आ गई टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो बहुत है इतना आज के लिए इस टॉपिक के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।